Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning, Good ma'am. morning. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. So, how are you all? We are Good, fine, ma'am. 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 Fine, अच्छी ma'am. बात है. गुड. तो इस वीक तो आपके काफी कम लेक्चर्स हुए, तो रिलैक्सिंग रहा आपका वीक. Yes, ma'am. चलो Yes, अच्छा. ma'am. Yes, ma'am. चलो अच्छा है. So what we have covered earlier, we have covered first two topics of your first module. One is your history, second is your dosage form design. Done. We have Yes, ma'am. completed Yes, two. ma'am. Yes, ma'am. Is there any issue or any query regarding those topics? You have got your notes or not? Yes, ma'am. We have notes. Yes, ma'am. Okay, fine. So your next topic is prescription. Prescription, parts of prescription, and how prescription should be handled by a pharmacist. So first question is what prescription basically is. Prescription is an order, or often in written form. जो prescription होती है, that is always in written form. That is order issued by a qualified healthcare professional to a pharmacist or other therapist for a treatment to be provided to their patient. So what actually happens, a patient who is suffering from disease or certain problem, they visit to the physician is known as qualified healthcare professionals, whether physician, dentist, mbbs, md, all these come under qualified healthcare professionals. So that particular patient who is suffering from certain disease visit to the physician, then physician write down certain treatment or a set of drugs on a paper. Then that paper, patient will take that paper to the pharmacist, and pharmacist will fill that paper, or that particular drugs will be provided by the pharmacist. So this written form of treatment is known as your prescription. Prescription क्या है basically, कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो किसी क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास गया है, उसने कुछ दवाइयां लिख दी हैं उसको, वो जो रिटन फॉर्म है दैट इज योर प्रिस्क्रिप्शन. क्लियर है इतना कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. Ma'am. So, prescription is basically classified into two broad legal classifications. दो तरह की prescription होती हैं. The first thing is the medications which can be obtained only by prescription, which are referred as prescription drugs or legend drugs. So there are certain drugs that cannot be buy or cannot be provided without prescription. जैसे मैंने आपको पहले भी sedative hypnotics के बारे में बताया था. So what these sedative hypnotic drugs are, basically these drugs consist of certain chemicals that cause sleep, जो नींद देते हैं, हल्का हल्का नशा देते हैं, है ना. नींद आने वाली दवाइयों में हल्का नशा होता है. So these type of drugs that consist of certain amount of these type of contents or ingredients, तो वो जो drugs हैं वो prescription के बिना हम नहीं ले सकते. That means doctor or physician or a qualified healthcare professional have to evaluate whether you need that particular salt or not. If you need, he will prescribe and you will get it easily from the pharmacist. But if you are not required or your body do not need these type of salts, he will not prescribe, and without prescription you will not get that particular drug, because these drugs can be misused by certain persons, है ना. कुछ लोग हैं कि उनको होता है कि जैसे आपने कॉरेक्स कफ सिरप के बारे में बहुत सुना होगा, है ना. सुना होगा ना, Yes, ma'am. कॉरेक्स बहुत Yes. आती थी. मतलब लोग उसको लेके अलग अलग जगह पे बॉटल्स की बॉटल्स मिल रही थी कि कॉरेक्स लोग पी के नशा कर रहे हैं. तो अब क्या है, कफ सिरप्स जिनमें ऐसी कुछ डाला हुआ है, ऐसे सॉल्ट या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, दे कैन नॉट बी परचेज्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन. तो एक पार्ट हो गया मेडिकेशन का या आपकी प्रिस्क्रिप्शन का या ड्रग्स का, मेडिकेशंस का, कि जो प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिल सकती हैं. And the other thing is over the counter drugs. Over the counter drugs are those drugs that can be taken without prescription. Like you are having headache, fine, आपके हल्का सा वुंड हो गया है, आपको बीटाडीन लगानी है. इस तरह की कुछ मेडिसिन होती हैं. आपको हल्का सा फीवर हो गया है,
एंटीपायरेटिक की जरूरत है आपको, है ना, कहीं कुछ लेग्स पेन है या मसल स्पाज्म है, तो बहुत सारी ऐसी एलिमेंट्स होते हैं जिनके लिए हमें हर बार फिजिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं। लाइक आप सोचो कि इफ देयर इजंट एनी ओवर द काउंटर ड्रग जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल सकते हो, एवरी टाइम व्हेन यू आर हैविंग हेडेक आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर आपको लिख के देगा कि आप डिस्प्रिन खा सकते हो या आप डिक्लोफिनेक सोडियम ले सकते हो। एवरी टाइम यू नीड टू विजिट द फिजिशियन, बहुत मुश्किल हो जाती है आपके लिए, सबके लिए। सो अदर पार्ट इज ओवर द काउंटर ड्रग्स, जो ड्रग्स हमें प्रिस्क्रिप्शन के बिना मिल जाती हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? यस और नो? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. Then next comes the components of prescription. Now what are the different components of prescription? Prescription क्या है कि वो जिस पेपर पे डॉक्टर आपको लिख के देता है दवाइयाँ, तो he cannot write, or if he is writing on a simple plain paper, that is not acceptable, an acceptable prescription. वो acceptable नहीं होती अगर वो पेपर पे सीधा लिख के दे देता है। जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास कुछ डिग्री है, तो उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन होती हैं उनके कुछ पार्ट्स होते हैं। So what is the first part? First part of your prescription consists of prescriber's name, degree, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर। अगर आप किसी डॉक्टर के पास विजिट कर रहे हो, तो जो जिस पेपर पे वो आपको दवाइयां लिख के देगा, उस पेपर के ऊपर सबसे पहले उसका प्रिस्क्राइबर का नेम होगा, जो भी डॉक्टर होगा वो उसका नाम होगा, फिर उसकी डिग्री होगी, फिर उसका एड्रेस होगा एंड उसका टेलीफोन नंबर होगा। ठीक है। In the case of prescriptions coming from a hospital or a multi-center clinic, the hospital or clinic's name, address and telephone numbers appear at the top. Or in case you are visiting to a hospital or you are going to a multi-center clinic, तो उसमें क्या होगा, सबसे ऊपर होगा आपके हॉस्पिटल या मल्टी सेंटर क्लिनिक का नेम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, क्लिनिक का या हॉस्पिटल का एड्रेस, देन टेलीफोन नंबर्स अपीयर एट द टॉप पे टेलीफोन नंबर्स होंगे। इन सच अ केस द फिजिशियंस नेम एंड डिग्री वुड अपीयर नियर हिज और हर सिग्नेचर। जहां पे भी उसने फिजिशियन ने अपने सिग्नेचर्स करने हैं, वहां पे उसका डिग्री या फिजिशियन का नेम होता है। या फिर इन हॉस्पिटल्स देयर आर अ नंबर ऑफ फिजिशियंस और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स दैट आर वर्किंग, सो दे आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज। एरिया वाइज होता है, जैसे ईएनटी का अलग होता है, आपने देखा होगा कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसमें ईएनटी का डॉक्टर अलग है, पीडियाट्रिक अलग है, जीरियाट्रिक अलग है, हार्ट कार्डियो वाला अलग है, रीनल वाला अलग है। तो उसमें वो क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन कैसी होती है, टॉप पे हॉस्पिटल का नेम होता है, उसका एड्रेस होता है, और जो टॉप पे उसके टेलीफोन नंबर्स होते हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे उन्होंने एक कॉलम रखा होता है जिसमें उन्होंने अपने डॉक्टर्स के नेम्स रखे होते हैं, प्लस उन्होंने नीचे उसकी डिग्री लिखी होती है। ठीक है, कि होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ योर प्रिस्क्रिप्शन। सेकेंड थिंग इज, फिर उसके बाद जब आपका ये प्रिस्क्राइबर का नेम, डिग्री, एड्रेस या हॉस्पिटल का नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर आ गया, उसके जो नेक्स्ट पार्ट होता है दैट कंसिस्ट ऑफ पेशेंट्स नेम, एड्रेस, एज एंड द डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। फिर वो पेशेंट का नेम लिखने के लिए कॉलम होता है। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास विजिट करते हो, आता है ना नेम, फिर वहां पेशेंट का नेम होता है, देन एड्रेस, वो पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, क्या आपका एड्रेस है, देन एज, देन डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। Age and date of prescription is very important. These two are the mandatory things that a doctor need, because जो भी उसने ड्रग देनी है, मतलब जो मेडिसिन देनी है, उसकी जो डोज बनेगी, that will depend upon the age of the patient. वो 10 साल का है, उसकी अलग डोज बनेगी, वो 20 साल या 25 साल का, उसकी अलग डोज बनेगी, और अगर वो 45 या 50 का है या 65 का है, उसकी अलग डोज बनेगी। सो एज इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। देन अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ योर प्रिस्क्रिप्शन इज योर डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हमने क्या कहा है, हमने अभी डिस्कस किया है कि देर आर टू टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन या मेडिकेशन थेरेपीज। एक होता है कि जिसमें हम प्रिस्क्रिप्शन में अगर दवाई लिख रहे हैं, इफ वी आर मेंशनिंग द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग इनटू द प्रिस्क्रिप्शन, देन ओनली वी कैन गेट फ्रॉम फार्मासिस्ट। And other is over the counter drugs. If we have prescription or we are not having prescription, we can get that drug or that medicine from the pharmacist. ठीक है। डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का रोल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इफ डॉक्टर हैव प्रिस्क्राइब्ड सर्टेन सिडेटिव, हिप्नोटिक्स और दीज टाइप ऑफ एजेंट दैट कैन कॉज स्लीप, जो मिसयूज भी हो सकते हैं। तो इफ
a person, मान लो कि a person is suffering from depression, temporary state of depression, and he is not getting sleep at night for 3 to 4 days. If a person is not getting sleep 3-4 nights regularly, then there is certain changes in the nervous system or body responses accordingly, and he will not get sleep after 4 days properly. So what happens, उसको ऐसे लगेगा जैसे insomnia जिसको हम बोलते हैं, उसको ऐसे लगेगा कि थका थका, बिल्कुल डिप्रेशन, उसको जो विजन भी है वो भी ढंग से नहीं होते. तो उस केस में व्हाट डॉक्टर कैन डू, ही कैन टेम्परेरीली गिव हिम certain drugs that can cause sleep after taking the medicine. कि उनको हम बोल देते, डॉक्टर बोल देता कि ये आप दवाई रात को खा लेना सोने से पहले, आपको नींद आ जाएगी. But that state can be temporary state. Your body require that particular salt temporarily. But कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको नींद नहीं आती, बस उनके दिमाग में आ गया कि मेरे को रात को नींद नहीं आएगी अगर मैंने दवाई खा ली, तो वो उसको कंटिन्यू कर लेते हैं. बट डॉक्टर्स उसको डिसकंटिन्यू भी करते हैं. वो 5 डेज देते हैं, 3 डेज देते हैं, पहले 20 mg देते हैं, फिर उसको 10 mg कर देते हैं, फिर उसको बंद कर देते हैं. बट कुछ लोग उसको बंद नहीं करते. If date of prescription is mentioned over the prescription on the top of the prescription, then pharmacist can evaluate whether this prescription is fresh or it is taken 6 months or 7 months or 1 year back. So to avoid the misuse of particular medicament or medication, it is mandatory to put date of the prescription on the top of the prescription. Clear hai itna? Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then the superscription. Superscription which is represented by the Latin sign RX. आपने देखा होगा कि RX जो है लिखा होता है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, देखा ना साइन RX का? Yes, ma'am. ये जो है, दिस इज अ लैटिन साइन. दिस साइन रिप्रेजेंट टेक थो. टेक तो ग्रीक में होता है, और यू टेक, इसका मतलब होता है यू टेक. और रेसिपी, रेसिपी मींस पहले क्या होता था, हमने हिस्ट्री पढ़ी है कि बहुत सारी ड्रग्स को मिक्स करके हमें चीजें लेनी होती थी. तो या तो इसका मतलब रेसिपी हो सकता है, या यू टेक. RX के बाद डॉक्टर लिखना शुरू करता है तो उसका मतलब होता है, RX का मतलब है यू टेक these मेडिसिन. समटाइम्स दिस साइन इज आल्सो यूज्ड टू डिनोट द फार्मेसी इटसेल्फ. अगर फार्मेसी को रिप्रेजेंट करना है तब भी हम RX का साइन जो है वो यूज करते हैं. ये सुपरस्क्रिप्शन होती है. ठीक है, क्लियर है कि RX क्यों होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. उसके बाद अगला पार्ट आता है द इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन इज द जनरल कंटेंट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन. इट स्टेट्स द नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मेडिकेशन. इंस्क्रिप्शन क्या होगी कि जनरल कंटेंट है जो, इसमें क्या होगा, जो मेडिकेशन है उसके बारे में लिखा जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में लिखा जाएगा, या उसके ब्रांड के या जेनरिक फॉर्म, कौन सी फॉर्म आपने लेनी है वो वाली फॉर्म लिखी जाएगी. In the case of compounded prescription, the inscription state the name and strength of active ingredient. या तो डॉक्टर कैन डू कि लाइक अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, ही कैन राइट कि atorvastatin calcium 20 mg. He can write like this, or Ator 40 mg or Ator 30 mg. Ator is brand name. एटोर क्या है, ब्रांड नेम पे आती है वो ड्रग, कार्डियोवास्कुलर ड्रग है. तो वो ये भी ब्रांड नेम भी लिख सकता है कि ये एटोर आप 20 mg वाली ले लीजिए, या फिर वो लिख सकता है एटोरवास्टैटिन कैल्शियम 20 mg, कि आपको एटोरवास्टैटिन कैल्शियम सॉल्ट जो है, दैट योर बॉडी नीड एटोरवास्टैटिन कैल्शियम 20 mg. सो व्हेनेवर अ फार्मासिस्ट फिलिंग द प्रिस्क्रिप्शन, वो देख लेगा कि एटोरवास्टैटिन कैल्शियम 20 mg किस ब्रांड वाली में आता है, तो वो वाली आपको मेडिकामेंट दे देता है. वो होती है आपकी इंस्क्रिप्शन. ठीक है. द सब्सक्रिप्शन represent the directions to the dispenser and indicate the type of dosage form or the number of dosage units. जो सब्सक्रिप्शन होती है उसमें क्या होती है, डायरेक्शंस होती हैं कि अगर आपने डिस्पेंस करके देनी है कोई दवाई, या इंडिकेट करना है कि इसको इस तरह से लेना है. ठीक है. For compounded preparations, the subscription is written using English और Latin abbreviation. जैसे कि इस तरह से लिखी हो सकती हैं, M at fat sol dis VI, या तो लेटिन एब्रीविएशन, या फिर लिखा होगा मिक्स एंड मिक्स सॉल्यूशन डिस्पेंस 6. ठीक है, या फिर ऐसे लिखा हो सकता है. ये आपका लेटिन वर्जन है, ये आपका इंग्लिश है. अब लेटिन में बहुत कम लिखा जाता है,
ताकि जो भी लोग हैं उनको प्रिस्क्रिप्शन समझने में थोड़ी इजी हो। तो लैटिन की बजाय इंग्लिश, पहले लैटिन में लिखा जाता था। पहले आपने देखा होगा कि कहते थे कि डॉक्टर ने क्या लिखा है समझ ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि तब डॉक्टर्स लैटिन लैंग्वेज यूज करते थे, ठीक है, जो बेसिक है ही। लेकिन अब इंग्लिश में लिखा जाता है कि मिक्स एंड मेक सॉल्यूशन। अगर कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शंस है जिसमें आपको कुछ बनाना है तो उसमें लिखा जाता है, सब्सक्रिप्शन में उनकी इंडिकेशन दी जाती है, मिक्स एंड मेक सॉल्यूशन डिस्पेंस 6, मतलब कि इसको दोनों को मिक्स करके आपने 6 फॉर्मुलेशंस बनानी है। मेक ऑइंटमेंट एंड डिस्पेंस 2, दैट मीन्स कि ऑइंटमेंट बना के 2 देनी है आपने, 2 डिफरेंट दे देनी है। मेक कैप्सूल्स एंड लेट 12 सच डोजेस टू बी गिवन। अब क्या है कि हमारे पास कैप्सूल्स, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के बारे में हमने पढ़ा है, उसमें हम कुछ भी फिलिंग करके दे सकते हैं। तो अगर कंपाउंडेड मेडिसिन है, कुछ ऐसा पाउडर है जो वो डायरेक्टली हम उसको नहीं दे सकते, तो उसमें लिखा होता है कि मेक कैप्सूल लेट 12 सच डोजेस टू बी गिवन, कि इतने इतने mg की 12 डोजेज आपने बनानी है, कैप्सूल बना के इनको दे दो, ठीक है। The signa, also known as transcription, represent the directions to the patient. Signa उसको ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पेशेंट को जो डायरेक्शंस देनी है। ऊपर वाली जो सब्सक्रिप्शन में थी वो डायरेक्शंस थी फार्मासिस्ट को, जिसने की प्रिस्क्रिप्शन को फिल करना है। अब ट्रांसक्रिप्शन है ट्रांसक्राइब करना, दैट मीन्स वो जो फार्मासिस्ट है वो उसको कन्वे करेगा पेशेंट को, ठीक है। So these directions are written in English or Latin or a combination of both. वो जो है, जो डॉक्टर ने फार्मासिस्ट के लिए भेजी हैं इंडिकेशंस, वो उनको लेटिन या इंग्लिश या कॉम्बिनेशन में भी ले सकता है। लेटिन फार्मासिस्ट को भी आती है, डॉक्टर को भी आती है। Latin directions and prescription are declining, but since they are still used, it is important to learn them. ठीक है, कह रहे हैं कि लेटिन डायरेक्शंस जो है प्रेस्क्रिप्शन में वो डिक्लाइन हो रही हैं, बट सिंस दे आर स्टिल यूज्ड, इसलिए वो जरूरी है कि हमें वो पता होनी चाहिए कि क्या क्या है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है 2 कैप्स बेड 7 days, टेक 2 कैप्सूल्स ट्वाइस डेली फॉर 7 days, ठीक है। GTT.IIIAUHS instill 3 drops in both the ears at bedtime, कि 3 ये ड्रॉप्स हैं, 3 ड्रॉप्स आपने दोनों ईयर्स में डालने हैं। HS मींस रात को, बेड टाइम। जहां पे भी आपकी कोई भी थेरेपी, HS तो अभी भी डॉक्टर्स यूज करते हैं, जहां पे आपको लिखा होता है कि HS है, दैट मींस वो बेड टाइम की मेडिसिन है, ठीक है। इन रेक्ट पन पेन इंसर्ट रेक्टली एज नीडेड फॉर पेन, कि ये पेन के लिए है, जब भी पेन हो तो आप रेक्टली इसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? ट्रांसक्रिप्शन में क्या है कि आपने ये ट्रांसक्रिप्शन, ये चीजें डॉक्टर ने लिख के दे दी हैं, अब आपको उसको आगे कॉन्सल्ट करना है, ठीक है। देन लास्ट में आता है द प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर, उसके बाद आते हैं प्रिस्क्राइबर के सिग्नेचर या डॉक्टर के सिग्नेचर, ठीक है। The refill directions in which the information about how many times, if authorized, a prescription can be refilled is provided. Then a physician have to write कि कितनी बार इसको refill करना है, for how many times। मान लो 7 दिन की दवाई उसने दे दी है, वो ये भी लिख सकता है if needed you can refill or you can take or continue the treatment till further 5 days or further 6 days, or you can continue the treatment till next month or till 30 days। ऐसे कुछ करके वो उसको इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी अगर वो जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको रिफिल करना है तो, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन सच एज डिस्पेंस एज रिटन, ठीक है। या फिर अगर कोई और इन्फॉर्मेशन उसने लिखनी है, कुछ टेस्ट लिखने हैं, वो उसके ऊपर है कि वो क्या क्या लिखना चाहता है, ठीक है। क्लियर हो गया कि प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ओके। देन द टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब है कि प्रिस्क्रिप्शन के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, किस किस तरह से प्रिस्क्रिप्शन मिल सकती है। फर्स्ट इज योर सिंपल प्रिस्क्रिप्शन, those written for a single component or prefabricated product and not requiring compounding or admixture by the pharmacist। simple prescription क्या है कि उसमें physician have prescribed a single component जो already available है, वो pharmacist ने कुछ भी compounding, कुछ भी mixing नहीं करनी है, बस उसको उठाया और patient को दे दिया, that is your simple prescription। The next is your compound or complex prescription। उसमें क्या होता है, those written for more than a single component and requiring compounding। वो जिसमें लिखा होता है कि एक से ज्यादा कंपोनेंट उसमें डालने हैं और उसको कंपाउंड करके देना है आपको, उनको मिक्स करके देना है, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन।
The next is your e-prescription or electronic prescription. The use of electronic means for the generation and transmission of prescription is used and accepted in some countries. E-prescription अब तो यहाँ पे भी कोरोना के टाइम पे e-prescription बहुत चल रही है. A few days back I have visited one doctor और उसने वीडियो कॉल से ही पूरा एनालिसिस किया, पूरा उसने हिस्ट्री लिया. ठीक है, वीडियो कॉल के बाद उसने मुझे इंडिकेशंस बता दी और सारा कुछ बता दिया कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये हो सकती है. उसने टेस्ट बता दिए. ही हैज गिवन ई प्रिस्क्रिप्शन टू मी. दैट मीन्स उसने व्हाट्सएप पे ही मुझे एक उसने कंप्यूटराइज्ड प्रिस्क्रिप्शन भेजी कि आप उसमें ट्रीटमेंट लिखा हुआ था, फिर उसने जो टेस्ट थे वो उसने लिखे हुए थे सारे, वो होती है ई प्रिस्क्रिप्शन. काफी कंट्रीज में वो पहले से चल रही है. हमारी कंट्री में अब आजकल बहुत ज्यादा चल रही है क्योंकि कोरोना के डर से डॉक्टर्स भी एक्सपोज नहीं कर रहे हैं अपने आप को पेशेंट्स के साथ. ठीक है, सो दैट इज योर ई प्रिस्क्रिप्शन. Next is your inpatient prescription, a medication order form used in the hospital setting. Inpatient का क्या मतलब होता है? जो भी हॉस्पिटल के अंदर है. आपने देखा होगा जब भी आप जाते हो हॉस्पिटल्स में तो आपने देखा होगा आईपीडी लिखा होता है या ओपीडी लिखा होता है. देखा है कहीं? Yes, ma'am. आईपीडी और आईपीडी और ओपीडी का क्या मतलब है? आईपीडी इज योर इनपेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी इज योर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. सो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और इन पेशेंट डिपार्टमेंट में क्या मतलब है कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के वो आते हैं, दवाई लेते हैं और चले जाते हैं. इन पेशेंट है वो आते हैं, दवाई लेते हैं और यहीं पे रुक जाते हैं. वो हॉस्पिटल में रुकते हैं, वहीं पे उनका ट्रीटमेंट चलता है. ठीक है, तो इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन क्या है? अ मेडिकेशन ऑर्डर फॉर्म यूज्ड इन द हॉस्पिटल सेटिंग. कि हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर ही जो मेडिकेशन ऑर्डर फॉर्म होता है वो है. In addition, other forms may be used within a hospital by specialized unit such as infectious disease, cardiac care, pediatric and others. और जो अदर फॉर्म्स होते हैं जो हॉस्पिटल की स्पेशलाइज्ड यूनिट्स के थ्रू निकलते हैं वो है इन्फेक्शियस डिजीज, कार्डियक केयर एंड पेडियाट्रिक्स. ठीक है, drug specific forms also may be used as for heparin dosing, electrolyte infusion and morphine sulfate in patient controlled anesthesia. ड्रग स्पेसिफिक फॉर्म्स भी हो सकते हैं जैसे हेपरिन डोजिंग है, इलेक्ट्रोलाइट इन्फ्यूजन है. मान लो कि किसी को वीकनेस हो रही है, उसको अगर इन्फ्यूजन देना है, इलेक्ट्रोलाइट में मल्टीविटामिन का इंजेक्शन डाल के वो इन्फ्यूज करते हैं, तो उसके लिए वो 1-2 घंटे के लिए रुक सकते हैं. वो भी प्रिस्क्रिप्शन इन पेशेंट ही होंगे. ठीक है, उसके बाद आती है हमारी नार्कोटिक प्रिस्क्रिप्शन. नार्कोटिक प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है? कंटेन्स अ नार्कोटिक सब्सटेंस और अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स. इट मस्ट कंटेन इन एडिशन टू द कंटेंट्स ऑफ द सिंपल प्रिस्क्रिप्शन. नार्कोटिक में क्या है कि उसमें नार्कोटिक सब्सटेंस होंगे और अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स. हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स कौन सी होती हैं? जिनमें हल्का हल्का नशा होता है और इफ पेशेंट इज टेकिंग रेगुलरली उसको लगता है कि ये दवा
है आपकी बॉडी में या नहीं है, तो वो टेस्ट कराता है। फिर वो टेस्ट की रिपोर्ट आपसे भेजता है, जो आपको फर्स्ट एड है, या कह लो कि इनिशियली जो उसने ट्रीटमेंट आपको देना, वो पहले ई प्रिस्क्रिप्शन, वो कंप्यूटराइज्ड एक स्लिप या फिर लिख के वो आपको सेंड कर देगा थ्रू मेल और थ्रू व्हाट्सएप या एनी अदर मीन, जिससे भी प्रिस्क्रिप्शन आ सकती है। आजकल तो डॉक्टर्स की एप्स बनी हुई है ना, वो उन्होंने एप्स में डाल देते हैं आपकी प्रिस्क्रिप्शन। एक्सक्यूज मी मैम, फिर उसके बाद, हाँ जी, मैम आपकी वॉइस रिपीट हो रही है। रिपीट इसलिए हो रही है क्योंकि किसी ने 2 जगह से लॉगिन किया हुआ है, इसलिए रिपीट हो रही है। आस्था की भी हो रही है 2 बार में, सबकी हो रही है। हाँ, ऐसे कुछ है इसी का। ठीक है, तो ई प्रिस्क्रिप्शन क्या है कि जो ऑनलाइन आपको मिली है, ऑनलाइन मीन से, चाहे वो आपकी कोई ऐप के थ्रू मिली है, चाहे आपको मेल आई है, चाहे आपको व्हाट्सएप मिली है। ठीक है, Okay, ma'am. Thank you, ma'am. मैम ठीक है। हाँ, कितनी जल्दी थैंक यू किया, किसको इतनी जल्दी लगी है लेक्चर छोड़ने की? डाउट क्लियर करने के लिए थैंक यू था वो। मैम अच्छा, ठीक Yes, है, ma'am. मेरे को लगा शायद इसलिए है नहीं कि मैम, मैडम 11:53 हो गए हैं। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ठीक है। मैम हाँ जी, you told that sedative or narcotic, when we take these two drugs, जो हाँ, action होता है, जो effect होते हैं, वो similar होते हैं या difference का होते हैं narcotic में? कौन, होते हैं। हाँ, हैबिट फॉर्मिंग हो सकती है, कुछ अमाउंट इनका मतलब मान लो कि कंटिन्यूस यूज अगर कर लेते हैं कुछ लोग, तो हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है। ठीक है, तो उन्हें लगता है कि मेरे को कि आप मान लो कि मुझे रात 12 बजे तक नींद नहीं आती, और मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आप नींद आपको जैसे जो नींद मतलब डिप्रेशन हो जाता है, वो टेम्परेरी स्टेट होती है, बट इनिशियली डॉक्टर आप प्रिस्क्राइब कर सकता है। ठीक है? लेकिन डॉक्टर ने तो किया आपको 5 दिन के लिए, लेकिन आपने कहा कि चल ज्यादा ले लेते हैं, या फिर प्रिस्क्रिप्शन आपको वहां से पे करके दे दी दोबारा। अगर आप महीने उस पे चलोगे तो आप बच सकती हैं, इसलिए कहता है कि अपने पार्टनर्स में आप छोड़ दें बीच में इसको। ठीक है, तो होती हैं।